Hello everyone. Today we are going to continue with hydrochloric acid. So, when hydrogen chloride gas is dissolved in water, hydrochloric acid is formed. गैस को जब पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो क्या बन जाती है वो एसिड. The covalent compound ionizes in water due to its polar nature. So, कोवेलेंट कंपाउंड जो है वो वाटर में क्या हो जाता है, आयनाइज हो जाता है, बिकॉज वाटर इज पोलर इन नेचर. सो व्हेन हाइड्रोजन क्लोराइड गैस डिजॉल्व्स इन वाटर इट फॉर्म्स हाइड्रोनियम एंड क्लोराइड आयंस. सो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एंड दीज आर क्वेश्चंस ऑल्सो. Dry hydrogen chloride gas and liquefied hydrogen chloride do not turn blue litmus paper red, showing non-acidic character of dry gas. So up to here is the question that dry hydrogen chloride gas or liquefied hydrogen chloride do not turn blue litmus paper red. Why? Reason क्या है? Because they are non-acidic in nature. Secondly, liquefied hydrogen chloride does not conduct electricity. Reason, it is covalent in nature. Moreover, how will you show that hydrogen chloride is covalent in nature? Answer will be liquefied hydrogen chloride does not conduct electricity. और इसका electricity conduct करना नहीं करना ये show करता है that it is covalent in nature. Then one more important point you have in this box, it is the gas is also soluble in toluene, but in that case it neither turns blue litmus red नॉर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी. ना ही तो ये ब्लू लिटमस को रेड कर रही है और ना ही ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रही है. व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट इट इज़ नॉन एसिडिक इन नेचर बिकॉज टॉलविन में हाइड्रोनियम आयन प्रेजेंट नहीं होते. सो हाइड्रोजन क्लोराइड इज़ अ कोवेलेंट कंपाउंड. अब उसके बाद है laboratory method of preparation of hydrochloric acid. How do we prepare it? So aqueous solution of HCl gas is known as hydrochloric acid. In our last video we did how do we prepare hydrogen chloride gas in the laboratory, ठीक है, with the help of sulfuric acid and sodium chloride. So वो जो गैस वहाँ जनरेट हुई थी उसे जब हम पानी में डिज़ोल्व कर दें तो वो क्या बन जाता है, इट बिकम्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड. So it is prepared by dissolving hydrogen chloride gas in water. The gas is passed into water until no more gas is absorbed. The product is concentrated and contains about 36% of hydrogen chloride by mass. So जब भी हमारे पास गैस से लिक्विड बनता है यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है तो उसमें HCl का कितना परसेंटेज होता है, इट इज़ 36%. So what is the procedure? An inverted funnel connected to the hydrogen chloride gas supply is placed in the beaker in such a way that it just touches the water taken in the trough. So यहाँ से आपकी HCl गैस की सप्लाई आ रही है. पीछे का अरेंजमेंट यू नो वेरी वेल जहाँ पर हमने HCl जनरेट की थी. अब यहाँ से डिलीवरी ट्यूब के साथ हम क्या लगा देते हैं, वी अटैच अ फनल. और यहाँ हमने एक जार ले रखा है या टब ले रखा है जिसके अंदर वी हैव टेकन वाटर. सो आपको इस तरह से अरेंज करना है दैट द रिम ऑफ द फनल जस्ट टचेज द वाटर सरफेस. नाउ सिंस HCl gas is highly soluble in water, the water rises up in the funnel, back suction occurs and in turn the level outside the funnel falls, creating an air gap between the rim of the funnel and the surface of the water. अब जो गैस है दिस इज़ हाईली सॉल्युबल इन वाटर, तो क्या होगा, बैक सक्शन विल अकर. बैक सक्शन इनकी पानी रिम के अंदर चढ़ना शुरू हो जाएगा, ड्यू टू विच इट क्रिएट्स अ गैप. यहाँ पर देखिए एक एयर गैप बन रहा है. नाउ द प्रेशर आउटसाइड एंड इनसाइड, बाहर और अंदर का प्रेशर क्या हो जाएगा, इट विल बिकम सेम. और जो वाटर जो है वो राइज करा है इट विल फॉल डाउन अगेन, ये फिर से नीचे गिर जाएगा टब के अंदर. दिस प्रोसेस कंटिन्यूस टिल द वाटर इन द ट्रफ इज सैचुरेटेड विद हाइड्रोजन क्लोराइड गैस रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ये तब तक होता है जब तक पूरी की पूरी गैस जो है वो पानी में क्या नहीं हो जाती, सॉल्युबल नहीं हो जाती. द क्वेश्चन अराइजेज दैट व्हाई डू वी यूज this funnel here, mechanism by which back suction is avoided or minimized. So funnel arrangement जो है it prevents or minimize back suction
एंड सेकेंडली इट प्रोवाइड्स अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ HCl गैस। ज़्यादा से ज़्यादा गैस क्या होती है फिर पानी में एब्जॉर्ब होती है। Now students, again the question arises, why is funnel arrangement used? So hydrogen chloride gas is sufficiently soluble, ये पानी में बहुत अच्छे से घुल जाती है और ये इसकी जो स्पीड होती है पानी में एब्जॉर्ब होने की वो जनरेट होने से कहीं ज़्यादा है। मीन्स ये जितनी स्पीड से जनरेट होती है उससे कहीं ज़्यादा स्पीड से पानी में soluble होती है। सो इन दिस केस प्रेशर इन द डिलीवरी ट्यूब एंड द फ्लास्क इज़ रिड्यूस्ड। डिलीवरी ट्यूब और फ्लास्क में जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है बाहर से वो पानी को क्या करेगा, फोर्स करेगा फॉर बैक अप टू द डिलीवरी ट्यूब। दिस इफेक्ट इज़ कॉल्ड एज बैक सक्शन। अगर हम ऑर्डिनरी नैरो यानी कि एक बारीक ग्लास ट्यूब यूज़ करें तो क्या होगा, इससे क्या होगा, जो वाटर होगा वो बहुत ही आसानी से फिल हो जाएगा एंड इट विल गो इनटू द जनरेटिंग फ्लास्क। यानी कि पीछे से होता हुआ बैक सक्शन हो जाएगी और पीछे से होता हुआ कहाँ चला जाएगा, जनरेटिंग फ्लास्क के अंदर। अगर जनरेटिंग फ्लास्क जहाँ पर गैस इकट्ठी हो रही है उसके अंदर पानी चला गया, सो ईदर इट कैन स्टॉप द रिएक्शन या वहाँ पर एक एक्सप्लोजन हो सकता है, बिकॉज heat is produced and when water comes in contact with hot concentrated sulfuric acid, जब ये दोनों आपस में कांटेक्ट में आएंगे इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी कि जो फ्लास्क है वो क्या हो जाएगा, इट विल एक्सप्लोड। सो व्हाट द प्रिकॉशंस वी हैव टू कीप इन माइंड टू प्रिवेंट सच एन एक्सीडेंट, एन एम्प्टी फ्लास्क जिसे हम एंटी सक्शन डिवाइस भी कहते हैं इज़ पुट बिटवीन द जनरेटिंग फ्लास्क एंड द वाटर ट्रफ। जहाँ पर हम HCl गैस बना रहे हैं और जनरेटिंग फ्लास्क के बीच में एक और जार फिक्स किया जाता है एंड दिस जार इज़ कॉल्ड एज एंटी सक्शन डिवाइस। इसका पर्पज़ क्या है कि अगर थोड़ा बहुत पानी कलेक्ट भी हो गया है बैक सक्शन की वजह से तो वो जनरेटिंग फ्लास्क में नहीं गिरेगा, वो किसके अंदर गिरेगा, एंटी सक्शन डिवाइस के अंदर। नाउ अ dilute aqueous solution of hydrochloric acid gets gradually concentrated on distillation। डिस्टिलेशन आपको पता है, बार बार गर्म करेंगे, वेपर्स बनाएंगे, ठंडा करेंगे एंड दिस प्रोसेस गोज़ ऑन जब तक कॉन्सेंट्रेशन एसिड की कहाँ तक नहीं पहुँच जाती, 22.2%। और ये 22.2% हम अचीव करते हैं एट नियर अबाउट 110 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद आप जितना मर्ज़ी गर्म करो, जितना मर्ज़ी बॉयल करो, हम इसकी कॉन्सेंट्रेशन 22.2% से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। सो व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड दैट HCl acid forms constant boiling mixture at how much, 110 degree Celsius. So students, I'm keeping up to here for today, and in our next video we will study the chemical properties of hydrochloric acid. Thank you.